जीवन हूँ मैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जीवित रहेगा, वह मर कर भी जीवित रहेगा। पुनरुत्थान और जीवन हूँ मैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जीवित रहेगा, वह मर कर भी जीवित रहेगा। बपतिस्मा संस्कार वो पाया, पुनरुत्थित जीवन भी पाया। बपतिस्मा संस्कार वो पाया, पुनरुत्थित जीवन भी पाया। प्रभु तुझ पर जी कर उसने अब अनंत जीवन है पाया। प्रभु तुझ पर ही जी कर उसने अब अनंत जीवन है पाया। पुनरुत्थान और जीवन हूँ मैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जीवित रहेगा, वह मर कर भी जीवित रहेगा। जो रखता है प्रभु तुझ पर कभी नहीं मरता है वो जीकर। आस जो रखता है प्रभु तुझ पर कभी नहीं मरता है वो जीकर। तुझको ही पाया है जीवन भर, अब न दे उसको मरने प्रभुवर। पुनरुत्थान और जीवन हूँ मैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जीवित रहेगा, वह मर कर भी जीवित रहेगा। पुनरुत्थान और जीवन हूँ मैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी
जीवित रहेगा वह मर कर भी जीवित रहेगा। Dear Bishop Swamiji, Father Nicholas, Father Xavier Tutor, Father Philip Boy, and the parish priest, Father Rajesh. My dear brother priests, sisters, and my dear friends, Jesu and good morning to one and all. We have gathered here this morning to celebrate the funeral mass and bid farewell, final farewell to our dear Father Joseph Pinto. We are consoled when I say, with God's love and grace, Father Joseph Pinto, you have passed to heaven. Simple and personal minimum wants. Joseph Pinto had a fall in his room on the morning of Friday, 25th of March. When he had not turned up for morning Eucharist and breakfast, conference tried to call him. His room was locked from inside, and so they broke open the door to discover him lying on the floor, bleeding. He was rushed to Robert nursing home. The first CT scan did not show any internal injuries, and so he was treated for the wounds that were laid externally. However, soon he became unconscious, and so a second CT scan was done that showed that there was a blood clot in the brain. Because of the age and general conditions, ruled out operation, and the doctors gave medicines to dilute the clot. Since he had become unconscious, he was shifted to the ICU of Robert nursing home. Father Joseph Pinto has been an inmate of St. Joseph's Home indoors from 2008. He was being treated for various types of ailments by the doctors. He meticulously followed their instructions and had a very simple eating habits that ensured longevity for him until his death. He was administered the anointing of the sick on the Tuesday, 29. He had gone into coma, and the end came rather fast yesterday at 12:10. We are consoled that Joseph Pinto did not have to suffer much and for a long time. He passed away peacefully. Joseph Pinto was born to late Mr. Rosario Pinto and late Mrs. Bridget Pius on July 12, 1937 at Borimar, Bangalore. There were 4 brothers and 3 sisters. Having completed his high school studies, he joined Catholic Ashram Pala on June 1, 1957. Those days, students spent 3 years of Pala to become familiar with Latin, and they also completed their inter-arts studies. From Catholic Ashram Pala, he moved to Gurda for his novitiate and made his first vows on May 31, 1962, and final vows in Divine Word Seminary, Pune, on 31 May 31, 1968. During his final years in July 1968 in Pune, Pinto had a motorcycle accident. He had learned motorcycle driving but was not an expert, nor was he very familiar in controlling the motorcycle. He had gone to buy some ice cream and was returning back to Divine Word Seminary when he hit a bus at Yerwada Junction. Since he did not
could carry any identity on him, he was hospitalized in Sassoon Hospital, Pune. He had head injuries that affected his behavior considerably. Later, electroencephalogram showed borderline cerebral damage that, according to some experts, was the cause of his abnormal behavior. Though he was ordained a priest at Bangalore by Bishop Basil D'Souza of Bangalore on October 19, 1968, he required recuperation for a considerable time. Having reached his mission destination in Indore for a year, he was assigned to Catholic Ashram Khurda without a portfolio for rest. He had to have also thorough rest due to the after effects of the motorcycle accident. From here, he was appointed as assistant at Catholic Ashram Jhabua, Catholic Church Jhabua, 1771, and then to convert to look after the hostel primary school children in 71-72. He spent at least a year each in several stations of Kandwa diocese like Sirpur, Bandhana, Kanpur, and Badwani. The places he spent long periods were Deodik from 1973 to 76, Vilan-Kheda as parish priest for 7 long years from 1979 to 86. Nalwad as parish priest from 86 to 89. Following the above, he also worked for 2 years in Udainagar from 89 to 91 and parish priest of Tillur for 3 years from 91 to 94 and was assistant parish priest at Vijayanagar, Indore from 94 to 97. Following the above, he spent several years as a community member without portfolio at Pradeep Kandwa till his retirement in 2008. In St. Joseph home, he served also as vice rector from 2011 to 2012. He was also in St. Thomas Seminary for a few months when Marcel and myself we were in the seminary as students way back in 75. Joseph Pinto acknowledged that he was not a great preacher or a teacher. He spent time listening to people and rarely contributed or began conversations by himself. He was not a joker, but he enjoyed listening to jokes and was very attentive to light conversations. Some of the sisters I remember seeing them sometimes used to sing that song. Baby Daddy Daddy Sugar. And give a very mesmerizing smile. He was not a great reader also of books. Only things that mattered to him was to know the welfare of his conference. He was inquisitive about their health. The rest of the time he would just keep a smile. He spent considerable time for prayer and reflection. Dear friends, it is that the promise was a silent, smiling, and unassuming conqueror. We will miss you, Father Joseph Pinto. May you rest in peace and be an intercessor for us in heaven. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संचय आप सबको प्राप्त हो। आदरणीय फादर वाकर जी, आदरणीय उपस्थित फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाइयों बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं फादर जोसेफ पिंटो के धन्य जीवन के लिए, लंबी उम्र और लंबे सेवा के बाद प्रभु ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया।
जाने का अलग अलग तरीका है। प्रभु उन्हें इस तरह जल्दी से हमारे बीच में से बुलाया। उनकी उस मुस्कुराहट हमारे सामने सदा बना रहेगा। उनके धन्य जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए और उनके जीवन में उन्होंने अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ की है उन सब के लिए माफ़ी मांगते हुए आइए हम प्रभु के समक्ष इस निशा मिलान के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें और उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। संत पौल का वो कथन हम याद करते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरा की है और मैं अभी उस मुकुट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु के सामने आते हुए आइए हम फादर जोसेफ के सभी कमियों के लिए, गलतियों के लिए और हमारी सभी गलतियों के लिए प्रभु से और भाई बहनों से क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने सेवक फादर जोसेफ को इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक कार्यभार सौंपा था। उनकी आत्मा स्वर्गलोक में विराजमान होकर सदा सर्वदा आनंद बनाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीवन और प्रमेयता के प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ नबी इसायाह का अध्याय 25 वाक्य संख्या 6 से 9। प्रभु सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु विश्व सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Yeah.
है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद से 17 से 27 तक। बेथनिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजर 4 दिनों में कब्र में है। बेथनिया यरूशलेम से 2 मील भी कम दूर ही था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। क्योंकि ये माता ने ये सुना कि यीशु आ रहा है और उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। माता ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अभी आप ईश्वर जो कुछ मांगोगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है और कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु का वचन हमारे पापों को आदर दिया। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों, चालीसे के समय में हम सभी प्रभु के दुर्भोग में, मृत्यु में, पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए अपने को तैयार करें। प्रभु की दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान हम सबों के विश्वास का मुख्य बिंदु। अगर प्रभु नहीं उठाते, नहीं मरते और पुनर्जीवित नहीं होते तो हमारा जीवन, हमारा इस धरती जीवन बहुत ही दुखद और आशाहीन होता है। प्रभु के पुनरुत्थान से हम सभी आशा प्राप्त की और हमारे जीवन की एक साधारण सी बात है कि हम सबको एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। चाहे वे हमारे ही परिवार के हो, हमारे मित्र हो, हमारे करीब पड़ोस कोई हो, जब बुलाया जाता है हम सबको जरूर दुख होता है। लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान हम सबको आशा देती है कि जो प्रभु में विश्वास करते हुए जीते हैं और मरते हैं वे उनके साथ जी उठेंगे।
फादर जोसेफ पिंटो ने भी प्रभु के इन वचनों को अपनाया था, स्वीकार किया था, विश्वास किया था और इसी पर चलते हुए वे उनके उस समाचार के प्रचार के लिए अपना गांव परिवार छोड़कर उत्तर भारत में अपनी सेवाएं दी, चाहे वे खंडवा में हो, झाबुआ में हो, इंदौर में हो। हम उनकी उन सभी मिशनरी कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसके तहत उन्होंने प्रभु के समाचार बहुतों को सुनाया था, पहुंचाया था। और इस समय जब वे हमसे अंतिम विदा ले रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं उनकी उस दैनिक जीवन के लिए जिनके द्वारा वे प्रभु के समाचार के लिए साक्ष्य दिया है। उनका सरल जीवन, उनके निर्कलंक मुस्कुराहट और उनकी अमूल्य सेवाएं हमारे लिए याद बनकर रहेगा। हम उनसे प्रेरणा लें, सरलता के लिए, सुसमाचार के लिए, समर्पण के लिए और धार्मिक धर्म संघीय जीवन और गुरुहिताई जीवन के आदर्श के लिए हम उनके परिवारजनों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहन दिया और मिशनरी बनकर उनके प्रदेश में अपनी सेवाएं देने के लिए भेज दिया और प्रार्थना के द्वारा उन्हें निरंतर सहायता देते रहे। कामेश्वरी समाज की ओर से उन सबको धन्यवाद देते हैं, तीनों धर्मप्रांत की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं और इस मैसेज बलिदान के द्वारा प्रभु से दया याचना करें कि उनके जीवन की छोटी मोटी जो भी गलतियाँ कमियाँ हुई हैं उन सबको माफ करते हुए उन्हें अनंत जीवन और अनंत शांति के राज्य में पहुँचाए। संत जोसेफ जो अच्छी वृत्ति का प्रार्थना मध्यस्थ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे अपने इस बेटे को प्रभु तक पहुँचने में अपनी मध्यस्थता के द्वारा वे सहायता करें। आइए हम सब मिलकर इस बलिदान के द्वारा उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करें। अब वे इसी बलिदान के फलस्वरूप तेरा दिव्य दर्शन करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन।
प्रभु के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु के द्वारा मुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सके। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि 10 दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र करते हैं। ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु पृथ्वी के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, उसे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि ये मेरे रक्त का टुकड़ा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा इसीलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मृत्यु पर प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा अपने पुनरुत्थान की बात जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की खंड पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा बलि पोषण होता है। ऐसा कर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए। यीशु की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, के धन्य प्रेतों, प्रताप शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद सहभागी बनाए। हमें इनके सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक सिद्ध फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
हे दयालु पिता, तेरे सेवा में उपस्थित अपने बच्चा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। अपने सेवक जोसेफिन प्रेसिडिले इसके द्वारा इस लोग से यहाँ बुला लिया है। उन्हें ये वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन हे प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को प्रयुक्त करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना लेंगे। अपने बुजुर्ग भाई बहनों को और उन सबों को भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दया पर अपने राज्य में प्रवेश पाने दें। हम लोग भी वही बजने की आशा करते हैं, वहाँ हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अंधकार तक होते रहेंगे। उस समय हमारे ईश्वर तो हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरे यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अंधकार तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रवेश के द्वारा जिसे संसार को सब शक्ति प्राप्त होते हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसे प्रतीक्षा करते रहे, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। स्वीकार विजेता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के बेटे सारे पाप हम पर दया कर, ईश्वर के लिए जो संसार से पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना किन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यदि है वे जो मेमने के फौज में बुलाए गए। अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे।
शब्द कहने में यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम हम हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप चाको के आभारी हैं, जिन्होंने फादर जोसेफ पिंटू की आत्म शांति के लिए मिसा बलिदान चढ़ाया। हम खंडवा धर्म प्रांत के एडमिनिस्ट्रेटर फादर अगस्तिन के भी आभारी हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मिसा बलिदान में शरीक हुए और फादर जोसेफ पिंटू की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। सभी भाइयों को मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए, सभी धर्म संघियों को, प्यारे भाइयों और बहनों, मिसा बलिदान में शरीक होने के लिए आपके हम आभारी हैं। डॉक्टर खापरा, रॉबर्ट नरसिंह होम की सिस्टर्स, संत जोसेफ सेविका संस्था की सिस्टर प्रेमशीला और सिस्टर एलिस के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जो लंबे समय से हमारे फादर जोसेफ पिंटू की देखभाल करते आ रहे हैं। SSPS सिस्टर्स, जिन्होंने फादर जोसेफ पिंटू के कफन को सजाया है, कैथलिक आश्रम पालदा के स्टाफ और स्टूडेंट्स, होली स्पिरिट चर्च के पल्ली पुरोहित फादर राजेश तिर्की को हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दफन की सभी धर्म क्रियाओं का बड़े ही अच्छे तरीके से इंतजाम किया है। विद्योदय सेमिनरी के स्टाफ और स्टूडेंट्स को क्वायर के लिए, फादर क्लैरेंस को ऑब्ituary के लिए, सत्य प्रकाशन संचार केंद्र को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन सबों के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करा है। फादर जोसेफ पिंटू के प्रियजनों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने फादर जोसेफ पिंटू को कलीसिया की सेवा के लिए, हमारी संस्था की सेवा के लिए और विशेषकर हमारे प्रोविंस को उन्होंने दिया है। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य रखेंगे। सभी धर्म क्रियाएं होने के बाद आप सबों के लिए भोजन की व्यवस्था कैथलिक आश्रम पालदा के बास्केटबॉल में की गई है। आइए हम सब खड़े होकर अंतिम प्रार्थना करें। मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित जोसेफ पिंटू को अपने संस्कार का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। केवल हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग दादे प्रभु की सेवा में जीवन बिताइए। हे प्रभु करुणा सागर, वो दीन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तो अपने दुखी जनों को दिलासा दे, दुखी जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सर्वदा सर्वदा और अनंत काल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में हे प्रभु महिमामय तू जब आए, तेरी दाहिनी ओर प्रभु संतोष आशीष पाए। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु तेरे सूली को नतमस्तक को आराधे। सलीब सबका उद्धार है, सलीब में ही जीवन है। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। आकाश धरती सब तेरी, मृत जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे।
स्वयं तेरे संतान है। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतक तेरी काया को, केवल पावन लोगों को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकारो अब आकाश में। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। ओ ये विद्रोह मिट्टी में उगते वर्षा बूंदों से, सुनकर तुरगी की आवाज मृतक सारे जी उठे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मृतकों को प्रभु जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। न्यायाधीश यीशु तू दे दो मुक्ति पापों से। न्याय से बचा ले तेरे नश्वर भक्तों को। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। हे प्रभु तू अपने कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह में संभाले। तू ही जीवन सदा तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधा तथा आत्मा का आशा केंद्र है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। स्वीकार करना प्रभु मेरा विश्वास होगा, सामने तेरे दासों का बलिदान सारा। स्वीकार करना प्रभु मेरा विश्वास होगा, सामने तेरे दासों का बलिदान सारा। अब्राहम इसहाक याकूब पूर्वजों का पावन बलिदान, जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभु मेरा विश्वास होगा, सामने तेरे दासों का बलिदान सारा। अटारी में प्रेरितों का नम्र पूर्वक पावन बलिदान, जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभु मेरा विश्वास पूर्वक, सामने तेरे दासों का बलिदान सारा। हे प्रभु मेरे गलती का तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। तू मेरे विनय के शब्दों यदि तू अपराधों पर ध्यान देते रहता, कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। ये जितना प्रभु को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास अपार मुक्ति है, जैसा कि उसके बाद उससे उधार लेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, जैसे वादी में दिया करेगी। आमीन। प्रभु तूने अपने सजीव एवं जीवनदायी वाणी से मृत लाजरस को जीवित कर दिया। वही वाणी हमारे इस भाई जोसेफ पिंडो की
न्याय विधि के दिन दिलाए। तेरी दाहिनी और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर, तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। मसीह सबके प्रभु, तेरे दूसरे महिमापूर्ण आगमन के समय जब स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, सारे मजलोग कब्र में से जी उठेंगे और तो धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस मुक्तिदायी क्षण में तेरे इस भक्त पद या दृष्टिदान अस्वीकार कर, जिसे भी उसी स्वर्गराज्य के उत्तराधिकारी बने जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार रखा है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर और कलीसिया और उसकी संतानों पर तेरी कृपा सदा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हे प्रभु से अनंत शांति प्रदान कर, तो विश्वासी फादर जोसेफ पिंटो की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। जीवन की कई कमियां मेरी, अगणित खताएं मुझसे मेरी। जीवन की कई कमियां मेरी, अगणित खताएं मुझसे मेरी। जीवन प्रणय में घटित है सारी, पछताऊं पापों पर भारी। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। क्षमा याचना अब है मेरी, स्वजनों से ये अर्ज है मेरी। क्षमा याचना अब है मेरी, स्वजनों से ये अर्ज है मेरी।
मेरी खातिर करो प्रार्थना, पा जाऊं संजीवन पानी। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। अलविदा अब तुम्हें नमन, मात पिता और भाई बहन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। रहूं तो कब तक तुम्हारे संग, एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। एक दिन है सबका स्वर्ग गमन। याद रखना स्वर्ग में जब तुम रहोगे, यीशु मुझे याद रखना। यीशु मुझे याद रखना, स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। अब तुम मेरे संग स्वर्ग में रहोगे। अब तुम मेरे संग स्वर्ग में रहोगे। यीशु मुझे याद रखना, स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। की दौलत में हासिल किया, सारी दुनिया को धोखा दिया। दुनिया की दौलत में हासिल किया, सारी दुनिया को धोखा दिया। क्या फायदा, मैं कुछ भी न पाया। क्या फायदा, मैं कुछ भी न पाया। कर तुझको ही मैं खो जाऊं। यीशु मुझे याद रखना, स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना।
तुझे मेरे गुनाह मुझको याद आए। इस क्रूस पर जब मैं देखा तुझे, मेरे गुनाह मुझको याद आए। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, धोते तू ये सारे पाप। यीशु मुझे याद रखना, स्वर्ग में जब तुम रहोगे। यीशु मुझे याद रखना। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इस भाई को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्गराज में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वो इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। आपका अनुवाक्य है, पिता हमारी प्रार्थना सुन। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई जोसेफ पिंडो को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी, अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने क्रिस्त का शरीर और अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था, इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। पिता हमारी प्रार्थना सुन। लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने हम एकत्र हुए हैं, तो अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा दें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तेरे साथ है, जिन दूसरे में और यदि आपके अधिकार में यीशु मरिया परमेश्वर की माता, पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय पुत्र
पवित्र आत्मा की महिमा होवे। विश्वासी जोसेफ पिंडो की आत्मा परमेश्वर की दया से आमीन। यही आस है, जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है कहीं छाँव है, कहीं दूर है कहीं पास है। इस दुनिया में क्या रखा है, घर तुझसे ही मैं दूर रहूं। इस दुनिया में क्या रखा है, घर तुझसे ही मैं दूर रहूं। भवसागर से इस जीवन में पतवार ही तो किनार है, कभी दूर है तो कभी पास है। सदा तेरा रहूं यही आस है, जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है कहीं छाँव है, कहीं दूर है तो कहीं पास है। अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। रे मनुष्य तुम मिट्टी हो, मिट्टी में ही मिल जा।